Good morning, my dear students, and welcome to today's class. Dear students, I hope that all of you are fit and fine in your homes and you all are following the precautions for the prevention of the spread of COVID-19. Dear students, it is our sincere responsibility that we do whatever we can to stop the rising cases. Now, my dear students, before I start today's class, I would like to remind you all of one thing. That is the importance of wishing your elders. Dear students, humbleness is a quality that is very often found in the successful people. And if you will wish your elders, you will get their blessings and you will become humble. So, my dear students, it is my advice to all of you that whenever you meet your elders in the morning or at the time of going to bed, please make sure you wish them. Okay? Now, my dear students, let's talk about today's class. In today's class, we will be covering a very important topic, although it is a very simple topic, but a highly important one, because it is going to remove confusion that you have about certain cases in English language. And that topic is determiners. This topic is very important because for sure it is there in gap filling. Gap filling में multiple choice questions आते हैं. So gap filling कर रहे हैं हम या फिर editing omitting कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पर determiners की knowledge होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आंसर को लेकर श्योर हो सकें. Okay, so dear students, now let's start this topic. What are determiners? Determiners, the simple definition is words that are placed before a noun to clarify what the noun refers to. Okay? पहली बात, determiners हम किन के सामने place करते हैं? Nouns के सामने. Okay? So that we are clear what the noun refers to. Okay? Now, dear students, please see here. You all know what is a noun, right? Noun is the name of a place, person, or thing. Okay? Your name may be Ajay, so Ajay is a proper noun. I have a pen in my hand. This pen is a noun. Okay? So we have several nouns around us. Like I am wearing this watch. This watch is what? It is a noun. Okay? But now the question arises, we have so many nouns. How do we identify them? हम उनकी पहचान कैसे करें? How can we be clear about nouns and its various attributes? Okay? जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि नाउन की ओनरशिप किसकी है? Okay? या वो नाउन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? Okay? या वो जो नाउन है उसकी क्वांटिटी क्या है? ओके, ये सब जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये सब हमें आंसर तभी मिलेगा जब हमें डिटर्मिनर्स पता होंगे. ओके, सो डिटर्मिनर्स हमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है. ओके, सो वंस अगेन लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन. डिटर्मिनर्स आर words that are placed before a noun to clarify what it refers to. Words जिन्हें हम noun से पहले place करते हैं. Noun से पहले हमने कोई भी word place किया, so then that is a determiner. Okay? उससे हमें क्या पता चलेगा? हमें clarity मिलेगी कि noun किसके बारे में बता रहा है. Okay? Noun किस चीज को रेफर कर रहा है. Okay? नाउन जो है वो किसे रेफर कर रहा है, हमें ये पता चलेगा. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अ पेन. फर्स्ट एग्जांपल इज अ पेन. हमने आर्टिकल ए का यूज किया है. यू ऑल नो कि जब कॉन्सोनेंट साउंड होती है तब हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल का, और जब वॉवल साउंड होती है तब हम एन का यूज करते हैं. ओके, अभी हम इनडेफिनेट, अभी हम श्योर नहीं है कि कौन सा पेन है, तो हमने जस्ट जनरली कह दिया अ पेन. तो वो यूनिवर्स में
कहीं पे भी कोई भी पेन हो सकता है. ओके, अ पेन, देयर इज अ pen. It can be your pen, it can be my pen. Okay, it can be any pen out of the millions of pens which exist in this world. Okay, जो बहुत सारे इतने सारे पेन्स हैं उनमें से कोई भी हो सकता है. Okay, then my pen. In this case we have specified the possession. Okay, हमने क्या किया है, हमने पोजेशन स्पेसिफाई कर दिया है. ओके, वो पोजेशन हम किसकी है, माई पेन, मेरे पास जो पेन है हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, सो नाउ अगेन वी आर क्लियर कि नाउन हमें जो हमारा डिटर्मिनर है वो किसकी बात कर रहा है, वो हमारे उस पेन की बात कर रहा है जो मेरे पास है, माई पेन. ओके, द ओनरशिप ऑफ दैट पेन इज विद मी ओनली. नेक्स्ट, this pen. Now we are talking about this pen which is near to me. Okay, ये बहुत ही क्लियरली रेफर कर रहा है. ओके, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये दिस पेन. ओके, थोड़ी दूर कोई पेन और होता तो मैं कह सकता दैट पेन, राइट. सो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये बता रहा है कि विच पेन, दिस पेन. ओके, ये पर, ठीक है. बहुत सारे पेन है, यूनिवर्स पेन्स है बहुत सारे यूनिवर्स में, उनमें से दिस पेन. ओके, एवरी पेन. ओके, अब हम बात कर रहे हैं इसकी एवरी पेन. यूनिवर्स में जितने भी पेन्स एग्जिस्ट करते हैं हमने वो सारे काउंट कर ले, दैट एवरी पेन. ओके, हियर we have clearly distributed an attribute to all the pens in the universe. Okay, every pen. Fine, हमने एक एट्रीब्यूट है हमारा, वो क्या है कि सभी पेन में कुछ चीज है, तो वो हमने सभी पेन्स को एलोकेट कर दिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी पेन. देन मेनी पेन्स, बहुत सारे पेन्स की हम बात कर रहे हैं. हमने क्वांटिटीज केस में स्पेसिफाई करी है. हमारा डिटर्मिनर हमें क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है. ओके, क्वांटिटी बता रहा है दैट वी हैव मेनी पेन्स. ओके, सो देयर आर मेनी पेन्स इन दिस यूनिवर्स. हमने क्या पता चला, क्वांटिटी पता चल रही है. ओके, देन वी हैव विच पेन. अगेन हियर इफ वी आर यूजिंग एन इंटेरोगेटिव, हम इंटेरोगेट कर रहे हैं विच पेन, कौन सा पेन. ओके, विच पेन, दैट पेन विच वाज यूज्ड बाय गांधी जी. ओके, सो विच पेन, हमने क्वेश्चन लगा दिया, हम इंटेरोगेट कर रहे हैं यहाँ पर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विच पेन. सो बेसिकली इन सभी एग्जाम्पल्स से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो हमारा नाउन है वो किन से रेफर कर रहा है. हमें पता चला कि क्या वो हमारे को किस चीज के बारे में बता रहा है. ओके, बेसिकली the noun here, again see the definition here. Okay, determiner is a word that is clarifying that the noun refers to what. Okay, हमारा नाउन हमें कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, किस पर्टिकुलर नाउन के बारे में बता रहा है, वो हमें कैसे पता चला, वो हमें हमारे डिटर्मिनर के थ्रू ही पता चला. ओके, वो डेफिनेशन क्या है हमारी, words that are placed before a noun to clarify what it refers to. Okay, सिंपल सी बात है. क्या इसमें दो चीजें देखनी है, डिटर्मिनर का क्या काम है, इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. ओके, इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. ये वॉच है, सो इससे पहले हम लगा रहे हैं माई वॉच. ओके, माई वॉच. ओके, नाउन से पहले हम डिटर्मिनर लगा रहे हैं. माई क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, वॉच है हमारी नाउन. ओके, सो अब हम इसे क्यों लगा रहे हैं, सेकेंड पार्ट जो है हमारी डेफिनेशन का वो हमारा रीजन है, टू क्लैरिफाई. ओके, टू क्लैरिफाई. अगर आपको यहाँ पे वॉच ना दिख रही होती तो कैसे पता चलता, या आपको मैं ना दिख रहा होता और सिर्फ ये वॉच रखी होती तो कैसे पता चलता. ओके, जब डिटर्मिनर माई लगा है तो आपको पता चला दैट इट इज माई वॉच, इट इज द वॉच विच आई एम
द ओनर ऑफ। ओके, ये मेरी वॉच है जिसका ओनर मैं हूं। सो डेफिनेशन में हमें क्या पता चला? पहली चीज प्लेसमेंट, दैट वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, words that are placed before a noun to clarify। okay, अब रीजन क्या है, क्या पर्पज है उनका? to clarify what the noun refers to। okay, so dear students, this is your definition of determiners। okay, okay class, now let's start the types of determiners। ये टाइप्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज दैट इन टाइप्स के बेसिस पे ही हम जज कर पाएंगे कि कब हमें नाउन से पहले कौन सा डिटर्मिनर लगाना है। अगर हमारी ये टाइप्स क्लियर हैं तभी जब हमें दो ऑप्शंस दिए होंगे डिटर्मिनर्स के और हमें उनमें से एक को चुनना होगा नाउन से पहले यूज करने के लिए, then only we'll be able to decide। especially गैप फिलिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। ओके, जो अभी इस ईयर सीबीएसई का पैटर्न जो चल रहा है तो 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 में से हो सकता है आपको 2 डिटर्मिनर, 3 डिटर्मिनर या चारों ही डिटर्मिनर्स हो। ओके, सो अगर चारों डिटर्मिनर्स हैं और वो चारों डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हमें क्लियर होने के लिए हमें टाइप देखना पड़ेगा। ओके, टाइप देखना पड़ेगा। टाइप देखने के बाद फिर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जज करेंगे कि सेंटेंस में किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हमें क्लैरिफाई करने के लिए नाउन को किस टाइप का डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। ओके, सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन जो हमें करनी है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो उसके लिए हमें ये टाइप्स पता होने चाहिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल से। आर्टिकल सबसे इजी जो हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल्स ए एंड द। ठीक है, जब हम इनडेफिनेट होते हैं, जब हमें क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं ए और एन। और जब हम डेफिनेट होते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इस नाउन की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी चीज की हम बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, और ए और एन में क्या डिफरेंस है? कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड का। बहुत ही सिंपल एरर है लेकिन बहुत बारी मैंने देखा है दैट यू पीपल कमिट इट। ओके, यू पीपल कमिट दिस एरर एंड व्हाई दिस एरर इज डन? बिकॉज आप भूल जाते हैं कि साउंड की बात करी गई है। ओके, आप जज करते हैं लेटर से ए ई आई ओ यू, जबकि आपको जज करना है इन वॉवेल्स की साउंड से। ओके, सो जब वॉवेल साउंड होती है तब हम लगाते हैं एन, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं तब हम लगाते हैं आर्टिकल ए। ओके, नाउ इन दिस आर्टिकल वी नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग। हमें सिर्फ एक ही चीज याद करनी है कि आर्टिकल्स जो होते हैं ना, जब नाउन होता है, ओके, इसमें जब नाउन होगा हमारा, जैसे कारपेंटर हमारा नाउन है, ठीक है, अ कारपेंटर। ओके, सो अ कारपेंटर हमने ऐसे लगा दिया, राइट। लेकिन अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है नाउन से पहले तो आर्टिकल फिर एडजेक्टिव से पहले लगेगा। ओके, जैसे अगर लिखा हुआ है स्किल्ड कारपेंटर तो हम आर्टिकल जो है स्किल्ड से पहले लगाएंगे। ओके, जो एडजेक्टिव है उससे पहले लगाएंगे, हम लिखेंगे अ स्किल्ड कारपेंटर। ओके, हम सो बेटा सी हम क्या करेंगे, हम जो है क्या लगाएंगे, आर्टिकल जो है वो स्किल्ड जो एडजेक्टिव है हमारा उससे पहले लगाएंगे। बस इतना सा ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा दैट वी हैव टू प्लेस the article before the adjective। okay, before the adjective, when there is an adjective before the noun, बस ये रूल है। okay, moving on, next is demonstratives। demonstratives क्या होते हैं? जो हमारे वर्ड्स हमें बताते, कुछ दिखाते, कुछ प्रेजेंट करते हैं। okay,
जिससे कुछ हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, हमारे को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। सो उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे दिस बॉय इज वेरी हैंडसम, दैट गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके, those boys are standing in a group, so this that those oh, they, so ये जो है हमारे, ये सारे क्या हैं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि हमें कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है हमारे सामने। ओके, नेक्स्ट जो है हमारी वो है पोजेसिव्स। पोजेसिव्स बिल्कुल हमें क्लियर है, जो हमारी क्या प्रेजेंट करते हैं, ओनरशिप प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। ओके, हमें बताया जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, ये जो नाउन है इसका ओनर कौन है, लाइक माई कार, हिज हाउस, ओके, हर होम, ये सारे क्या है हमारे पोजेसिव्स हैं। एक पोजेसिव्स का काम है सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप क्लैरिफाई करना। ओके, ये हमारी क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, ओनरशिप क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, सो जब हमारे को गैप फिलिंग में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हमें ओनरशिप बतानी है, हमें सिंपली एक पोजेसिव डिटर्मिनर वहां पे यूज करना है, विच वुड बी गिवन इन द ऑप्शंस। ओके, अगर ऑप्शंस नहीं है तो भी सिंपली हमें सेंटेंस को समझना है, ओके, कि सेंटेंस में क्या मांगा हुआ है, अकॉर्डिंगली हमें अपना डिटर्मिनर जो है वो चूज करना है। नाउ देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं, जो हमारे डिटर्मिनर्स हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, वो वर्ड्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ओके, अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे जो हैं ये एग्जांपल्स हैं इसके। ओके, लाइक every slice of the pizza was delicious। ओके, जो हमारा जो जितनी भी हमारी स्लाइस थी पिज्जा की वो सारी क्या थी, डिलिशियस थी। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, हमारा जो नाउन है, ओके, उसके सामने हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के बता दिया कि वो जो है किस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, सो जैसे अगर हम एक और एग्जांपल ले, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन नोटबुक। ओके, सो अब हमने यहाँ पे फिर क्या किया कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना था, हमें बांटना कैसे था। ओके, जो नोटबुक है वो लाना हर एक को हमने कैसे साइन किया, हमने ईच लगा। ओके, सो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओके, जो डिटर्मिनर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं। ओके, वो हमें क्लैरिफाई क्या करते हैं, वो हमें क्लैरिफाई करते हैं कि कितने पार्ट से कितने पीसेस हैं। ओके, जो वो नाउन है वो कैसे डिवाइडेड है। ओके, बेसिकली हमारे ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं वो हमें यही क्लियर करते हैं जो नाउन है हमारा वो कैसे डिवाइडेड है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, हमारी बेसिकली क्वांटिटी। इन डिटर्मिनर्स से हमें पता चलती है हमारी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जो है वो, उसके एग्जाम्पल क्या है, वन, फर्स्ट, फ्यू। ओके, क्वांटिटी में भी अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं। ओके, क्वांटिटी में भी अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें हमारी क्वांटिफायर्स जो हैं ये हमने कोई भी क्वांटिटी मेंशन करने के लिए वो कर दिया। अब वो जैसे एग्जांपल देखें, वन है, वन क्या है, होता है हमारा कार्डिनल होता है। ओके, नंबर्स जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी, ये सारे हमने कार्डिनल्स बोलते हैं हमें। ओके, जैसे वन बॉय, वन गर्ल, ओके, वन पेन, ठीक है,
सो ये जिनसे हमें क्वांटिटी पता चलती है हमारे नाउन की, जिससे हमें क्लैरिटी ये आती है कि हमारे नाउन का नंबर क्या है, वो होते हैं क्वांटिफायर्स। जैसे फर्स्ट, अब फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, ये तो आपको पता ही होगा, ये होता है हमारा ऑर्डर। ओके, ऑर्डर जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्डर है हमारा जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल। ओके, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल। ORD याद कर लेना। ठीक है, सो अगेन इससे हमें ऑर्डर पता चल रहा है। ठीक है, कि जो नाउन है वो किस ऑर्डर में लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा फ्यू। फ्यू, मेनी, सम, ये सारी हमारी क्या है? क्वांटिटी। लिटिल, ये सारी हमारी क्या है? क्वांटिटी। इससे हमें चीज पता चल रही है कि जो चीज है वो किस क्वांटिटी में है। ठीक है, लाइक आई डोंट हैव एनी मनी ऑन मी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ओके, सो हमें क्वांटिटी क्लियर हो रही है कि जो हमारा नाउन है वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट वन, दैट इज इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स में क्या होता है? हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ओके, हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा जो नाउन है उसके बारे में हम और जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सिंपल, विच, हुज, व्हाट। ओके, विच पेन, विच बॉय, हुज कार गॉट हिट इन द एक्सीडेंट। सिंपली हम क्या कर रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं अपने नाउन के बारे में और। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट आर नाउन। सो हम वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। अब अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट है, देन मेक श्योर यू प्लीज आस्क अबाउट इट एंड क्लैरिफाई इट। ओके, सिर्फ डिटर्मिनर्स का काम ही क्लैरिफाई करना नहीं होता, स्टूडेंट्स का काम भी क्लैरिफाई करना होता है if they have any doubts. Okay, so if you have any doubts, then feel free to ask. Make sure you raise your hand if you don't understand. Okay, that's it for this video. Thank you and have a great day ahead.